Hello students, today we will discuss rights of children. Okay, basically tell me who are children? Children मतलब कौन? And why these children has to give protection? ये children को, बच्चों को protection देने की क्या ज़रूरत है? Do you like children? Yes students, आपको बच्चे पसंद हैं? क्यों पसंद है बच्चे हम लोगों को? See these people, these children, they are smiley faces. Children ये सब मुझे लगता है सबसे happiest person है. बराबर है कि नहीं? They are so innocent. Why they are so innocent? Because they don't know the rules and values of the society. वो बहुत ही अच्छे दिल और उनको पता भी नहीं है सोसाइटी के उसूल क्या है, उनको पता भी नहीं सोसाइटी में क्या चल रहा है, तो वो अपने ही धुन में अपने ही लाइफ में वो जीते रहते हैं, राइट? सो दीज आर चिल्ड्रन वेरी इनोसेंट और दे आर रियली they are the one who are happiest. We'll see why these children, why this kind of person we call children. So biologically a child, plural children, is a human being between the stages of birth and puberty, or between the developmental period of infancy and puberty. इसका मतलब क्या है? इन्फेंसी मतलब अंडर 5 years एज एंड बहुत ही छोटे बच्चे. प्यूबर्टी का मतलब है 14 के बाद, एडोलेसेंट पीरियड, एडल्ट. ओके, सो 18 के बाद. सो दिस इन्फेंसी एंड प्यूबर्टी के बीच का जो भी एज पीरियड होता है उनको चिल्ड्रन कहा जाता है. The legal definition of child generally refers to a minor, otherwise known as a person younger than the age of majority. Children generally have fewer rights and less responsibility than adults. They are classed as unable to make serious decisions and legally must be under the care of their parents or another responsible caregiver. Social attitudes towards children differ around the world in various cultures and change over time. क्या मतलब है ये सब चीज़ों का? See, children मतलब age wise, biologically we can say children are the stage, child is the stage between birth and puberty. मतलब 0 एज से लेके 17th तक जो भी एज है वो होता है चिल्ड्रन, चाइल्ड एज, राइट? उसके बाद चिल्ड्रन को यहाँ पे लिखा है चिल्ड्रन जनरली हैव फ्यूअर राइट्स एंड लेस रिस्पॉन्सिबिलिटी. वाई? उनको रिस्पॉन्सिबिलिटी क्यों नहीं होती है उनके ऊपर? Because they don't know how to make their own decision. वो एक कोरा कागज है. Children मतलब उनका दिमाग, they are new in this world. वो नए हैं and purely they are transparent. They don't have anything. उनके दिमाग के ऊपर कुछ भी लिखा हुआ नहीं है, उनको कुछ भी सिखाया हुआ नहीं है, right? सो इसके लिए उनको बर्ताव कैसे करना है, उनका एटीट्यूड, इट इज डिफरेंट. दे आर लाइक सी दे आर, यू नो, डू यू लाइक स्मॉल बेबीज? व्हेन वी सी स्मॉल बेबीज हाउ वी फील? उनके चेहरे पे एक मुस्कुराहट रहती है, उनको पता भी नहीं रहता है कि हु इज देयर एनिमी, हु आर जेलस पीपल. सो दे डोंट नो हाउ they have to treat in front of others. So this is children. Now social attitude towards children differ around the world. इसका मतलब है पूरे वर्ल्ड में अलग अलग रिलीजन में, कल्चर में
चिल्ड्रन को लेके अलग अलग एटीट्यूड होता है. सो दिस इज व्हाट सोशल एटीट्यूड मीन्स. सोसाइटी में चिल्ड्रन के साथ अलग अलग बर्ताव होते रहता है. So this is according to the religion, this is according to the social forms. Okay. Now today we have to discuss about the constitutional and legal rights of children. But I just want to ask you why these children needs to have a constitutional and legal rights. ऐसा क्यों है कि चिल्ड्रन को भी ये कॉन्स्टिट्यूशनल एंड लीगल राइट्स की ज़रूरत होती है? क्योंकि ऐसे माना जाता है कि चिल्ड्रन आर द मोस्ट वीकर सेक्शन, चिल्ड्रन आर द ग्रुप ऑफ वीकर सेक्शन. क्यों ऐसा होता है? वो बहुत ही वीक हैं. क्यों वीक हैं? वो बहुत छोटे हैं. क्यों छोटे हैं? बिकॉज दे आर न्यू इन दिस वर्ल्ड, राइट? तो इसके लिए these under these norms of our society they are exploited. उनके साथ शोषण होता है. So they are become a victim of this exploitation. Now we'll see the population child ratio in India. See this pie diagram. They are showing 0 to 5 years यहाँ पे, then 6 to 10 years, 11 to 15 years and 16 to 18 years. So here these are the different age group of children they have been described. Then slowly in India, due to certain customs, the sex ratio of children are also differ. So here boys versus girls, we all know, we will see later why this sex ratio differ. So boys का ratio versus girls ratio, तो ये sex ratio होता है. So child sex ratio from 0 to 6 years between 1981 and 2011. So here 1981 में गर्ल्स का पॉपुलेशन 962 था. उसके बाद 945 in 1901, then 2001 में 927 है and 2011 में 919 है. सो गर्ल्स का सेक्स रेशियो कम होते गया. ओके, सो every 1000 boys there are 919 girls according to 2011 census. इसके पीछे रीजन क्या है? we will see later. But here we are talking about the rights of children. See the smiley faces here, how they smile, we feel so happy. Okay, हम लोग बच्चों के साथ जब खेलते हैं तो हम लोगों को बहुत मज़ा आता है. हम लोग अगर वो कुछ गलतियाँ करते हैं तो उनको डांटने में भी मज़ा आता है, बराबर है कि? और गलतियाँ बहुत ज़्यादा होती है तो उनको मारने में भी मज़ा आता है. आपके कोई भाई बहन या कोई रिलेटिव्स होते हैं या कोई आजू बाजू में रहने वाले बच्चे हैं तो उनके साथ अगर आप खेलते हो तो आप डांटते हो, उनके ऊपर अपना गौर जमाते हो, कि उनको पनिश करते हो और वो अब बेचारे सुनते हैं. कोई बच्चे होते हैं वो शैतान होते हैं, लेकिन थोड़ी सी आंखें बड़ी करेंगे, अगर हाथ में स्केल लेंगे हम लोग और उनको मारेंगे तो वह अपना सुनेंगे. क्यों? बिकॉज वी नो दैट चिल्ड्रन आर वेरी वीक. वो बहुत ही नाजुक है, बहुत डेलिकेट है और बहुत वीक है. उनके पास फाइट करने की ताकत नहीं है, ये हम लोगों को पता है. और इसी की वजह से हमारे पेरेंट्स भी हम लोगों को डांटते हैं. So see, this is not, I'm not telling that parents are wrong, but this is what scenario that कि children are meant to be exploited. मतलब ऐसा एक सिनारियो है सोसाइटी में कि बच्चे जो है वो एक गुस्सा दिलाने की चीज़ है. मतलब उनके ऊपर हम लोग गुस्सा कर सकते हैं, उनको मार सकते हैं, अगर वो खा नहीं रहे हैं तो उनको ज़बरदस्ती करके खिलवा सकते हैं.
जो भी हम लोगों को चाहिए वो उनसे हम लोग कर सकते हैं, ये हम लोगों के दिमाग में फिट बैठा है। बराबर है कि नहीं? जब आप लोग छोटे थे, अभी भी शायद से पेरेंट्स आपको डांटते रहेंगे, अभी हम लोगों को भी हमारे पेरेंट्स डांटते हैं, तो ये पेरेंट्स का डांटना ये अलग बात है, दिस इज फॉर काइंडनेस एंड दिस इज बिकॉज ऑफ दे केयर फॉर अस। बट हियर व्हेन सम पीपल, if they unnecessarily, if they don't treat good with children, नहीं चिल्ड्रन ने ऐसे ही करना है, उन्होंने पढ़ाई करना है, उन्होंने खेलना नहीं है, so there's all restrictions we put in their mind. Okay, one sided we can say it is good for them, but some people take undue advantage of children because they are so weak. Okay, now we will see the constitutional legal rights of children. So first of all, there are 444 million children in India under the age of 18 years. This constitutes 37% of the total population in country. According to census 2011, children are arguably the most vulnerable section of the society. It is argued that in India, children generally are highly neglected and exploited. The lack of capacity to fight for themselves makes children more weak. The Constitution recognizes children as a weaker section of the society and recognizes their special rights. As I told you, these are vulnerable section of the society. Vulnerable मतलब ये वीक हैं, वो फाइट नहीं कर सकते हैं और इसके लिए उनका शोषण होता है, and they are highly neglected, exploited by people, by their relatives, by their guardians, by anyone who feels they are strong, right? So for that matters, the Constitution has given some rights for children. The state is empowered to make any special provisions for children. In other words, this provisions enables the state to make affirmative discrimination in favor of children. Discrimination मतलब children के लिए special provisions दिया गया है. So जो provisions adult को नहीं है वो children के लिए दिया गया है. So this is under Article 15. Then the state shall provide free and compulsory education to all children of the age 6 to 14 years. Education, actually see, बच्चों का काम क्या है? हम लोग बोलते हैं students, who are students? Those who are studying, those who are going to the school or college. Okay, तो जो स्टडी करते हैं, पढ़ाई करते हैं, एजुकेशन लेते हैं, वो सब स्टूडेंट्स होते हैं. अभी चिल्ड्रन को पढ़ाई लेना बहुत इम्पॉर्टेंट है. वाई दे नीड एजुकेशन? बिकॉज एज आई टोल्ड, दे आर न्यू फॉर दिस वर्ल्ड. उनके लिए वो भी नए हैं वर्ल्ड के लिए और उनके लिए ये वर्ल्ड भी नया है. तो अच्छा क्या है, बुरा क्या है, ये जानने की ज़रूरत उनको होती है. नाउ यू ऑल्सो, आप भले एडल्ट, यू मस्ट बी हैविंग above 18 years, और amongst you some students are below 18 years. तो आप भी अभी एजुकेशन के ही, you also are from the vulnerable group, तो आप भी एजुकेशन के ही मोड में हैं. So at this age, this is very very crucial age, you know, under 18, because at this moment your brain is not developed. ब्रेन डेवलप नहीं रहता है और बायोलॉजिकल फिजिकल स्टेटस भी डेवलप नहीं, संपूर्ण विकास नहीं हुआ रहता है. सो फॉर दैट, इन दिस ब्रेन एनी वन एंड एनीथिंग कैन बी डम्प्ड. क्या मतलब है इसका? मतलब ये क्रूशियल पीरियड में 18 साल की उम्र तक ब्रेन का विकास नहीं. विकास का मतलब क्या होता है? See, development, physical development is over, done.
till the age of 18, but still many things has to be learned. बहुत सारी चीज़ें सीखने का जो पीरियड होता है that is till 18 years. So at this moment the brain is in the stage which I can say that crucial stage that anyone can dump anything. So कोई भी आके कोई भी सोच आपके दिमाग के अंदर जा सकती है, भले वो बुरी हो भले वो अच्छी हो, anything. So when a person or when a children of age मतलब 6 से 14 साल के बीच में कोई भी चाइल्ड हो या फिर उससे भी ज़्यादा फिर टीनेजर्स हो, तो उनको अच्छा करने के लिए भी कुछ भी वैल्यूज़ सिखाने के लिए भी ये एज होता है और वैल्यूज़ ना सिखाने के लिए भी ये एज होता है. सो एट दिस मोमेंट द एजुकेशन इज सो कंपल्सरी, क्योंकि एजुकेशन से वैल्यूज़ ऐड होते हैं. ओके, एजुकेशन से ये समझ में आता है what we have to think, what we have to do correctly, what is the correct path, क्या करने से क्या होता है, कौन सी चीज़ बुरी होती है, ये सब जानकारी हम लोगों को एजुकेशन से ही मिलती है. If you are educated, you will come to know what we have to do at what moment, at what time. Okay. So for that matter, state shall provide free and compulsory education to all children of the age of 6 to 14 years. Traffic in human beings and forced labor is prohibited. Under this constitutional rights of children, forced labor जो है children के लिए वो prohibit मतलब बंद किया गया है. No child below the age of 14 years shall be employed in any factory, mine or any other hazardous occupation. मतलब 14 साल के कम एज के बच्चों को फैक्ट्री में काम करना या फिर माइनिंग में काम करना या फिर hazardous occupation के लिए काम करना, ये this is prohibited. Okay, so hazardous occupation मतलब hazardous means not good for health. Okay, and वो occupation के लिए जैसे for example सिगरेट बनाना या फिर फैक्ट्री में कोई केमिकल फैक्ट्री है जो उसके हेल्थ के लिए बॉडी के लिए हानिकारक है. Then some beverage industry, actually industry, they should not be employed in the industry, but even in the hazardous occupation. Now, the state is required to ensure that children of tender age are not abused and that they are not forced by economic necessity to enter vocations unsuited to their age. What it means? Tender age मतलब as I told you the crucial age of 6 to 14. तो अब्यूज़ मतलब शोषण होना, उनका शोषण तो होना नहीं चाहिए, बट नॉट फोर्स बाय इकोनॉमिक नेसेसिटी मतलब पैसों के लिए उनको कोई भी काम करने के लिए मजबूर करना नहीं चाहिए. सो फॉर दैट मैटर दे शुड नॉट एंटर एनी वोकेशन मतलब कोई भी काम, कचरा उठाना एक्सेट्रा एक्सेट्रा. सो ये सब काम करने के लिए मनाही है under this constitutional rights. The state is required to ensure that children are given opportunities and facilities to develop in a healthy manner and in conditions of freedom and dignity, and that childhood and youth are protected against exploitation and moral as well as material abandonment. इसका मतलब क्या है? Children are given opportunities and facilities. उनको अपॉर्चुनिटी किसके लिए होनी चाहिए, फैसिलिटीज किसके लिए देना है कि उनके हेल्दी लाइफ के लिए. बिकॉज एट दिस एज हेल्थ इज मोर इम्पॉर्टेंट. उनका हेल्थ अच्छा होना चाहिए. उनको डिग्निटी मतलब एक सम्मान, उनके लाइफ के लिए एक सम्मान मिलना चाहिए.
एंड प्राइडिंग मूवमेंट होनी चाहिए, एंड चाइल्डहुड और यूथ अगर उनका एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है चाइल्डहुड में, सो it should be avoided. Moral as well as material abandonment. Abandonment मतलब social. So moral means emotional. Emotional शोषण. कोई कोई देखो फॉर एग्जाम्पल चिल्ड्रन को, छोटे हैं बच्चे हैं, इसके लिए उनका तिरस्कार भी करते हैं या फिर उनको उनके साथ गलत व्यवहार करते हैं, जैसे तो बच्चा है उनको मारपीट करते हैं, चिल्लाते रहते हैं, पूरा फ्रस्ट्रेशन, बड़े लोग फ्रस्ट्रेशन बच्चों के ऊपर आते हैं, उनको मारपीट करते हैं, या फिर अगर वो सुनेंगे नहीं तो इतना उनके साथ अच्छा बिहेवियर नहीं, अच्छे से बर्ताव नहीं करते हैं. सो मॉरली दे हैव बीन अबॉन्डेंट. मॉरली मतलब इमोशनली. सो उनका मोरल डाउन करना, जैसे फॉर एग्जाम्पल तुमको कुछ भी नहीं आता है, कुछ भी नहीं कर सकते हो, अगर अच्छे मार्क्स फॉर एग्जाम्पल अगर उनको अच्छे मार्क्स नहीं मिल रहे, कोई भी चिल्ड्रन है, सो पेरेंट्स बोलते हैं तुम कुछ भी करने के लायक नहीं हो, तुमको ये भी नहीं आता है, आप ये नहीं कर सकते हो, आपको दूध भी पीना नहीं आता है, आप हाथ से खाना भी नहीं खा सकते हो. सो निगेटिवली सी व्हाई दिस हैपेंस. ओके, ये अक्सर इंडियन फैमिलीज में ही हम लोगों को दिखाई दे रहा है. अकॉर्डिंग टू द स्टडीज, इंडियन फैमिली एक्सप्लॉइट चिल्ड्रन मोर देन वेस्टर्न फैमिली. व्हाई? बिकॉज हमारे नॉट रिलीजन बट इन अवर कस्टम व्हाट वी थिंक दैट चिल्ड्रन आर लाइक एसेट. मतलब जो भी पेरेंट्स चाहते हैं वो उनके बच्चों ने करना ही चाहिए, ऐसे हर पेरेंट को लगता है. ओके, मतलब अगर पेरेंट एजुकेटेड है तो उनको लगता है कि अपने बच्चे भी वैसे ही एजुकेटेड होने चाहिए. अगर पेरेंट ना एजुकेटेड है तो उनको लगता है हम लोग अगर एजुकेटेड नहीं तो अपने बच्चों ने करना चाहिए. जो पेरेंट, हर पेरेंट को लगता है कि हम लोग ने जो नहीं किया है वो हमारे बच्चों ने करना चाहिए. सो दे ऑलवेज पुट प्रेशर towards the children. So this is not their problem, but this is every generation think like that. Okay, so morally if children don't follow the instructions given by parent, so parent will make parent morally उनको गुस्सा देते हैं या फिर उनका मोरल डाउन करते हैं. नॉट इन ऑल फैमिलीज बट मोस्ट प्रोबेबली फैमिली में ऐसा होता है. सो मॉरली एज वेल एज मटेरियल. मटेरियल मीन्स फिजिकल. ओके, फिजिकली उनका शोषण करना, उनको मारना पीटना, एंड दिस हैपेंस इन मोस्ट ऑफ द फैमिलीज इन इंडिया. सो द स्टेट हैज गिवन फॉर टू अवॉइड दिस, to stop this, the constitutional rights are being made. The state shall endeavor to provide early childhood care and education for all children until they complete the age of 6 years. So this is the need for every state, but I don't think so कि ये किसी state में follow कर रहे हैं, because we see in our society, in poor families, what is the state of children, we know. Okay, so we have to think about it. अगर कोई ऐसे चिल्ड्रन है हमारे फैमिली में या फिर किसी के दूसरों के फैमिली में, तो हम लोगों ने उनके पेरेंट्स को ये बोलना चाहिए. It shall be the duty of every parent or guardian to provide opportunities for education to his child or ward between the age of 6 to 14 years. इसका मतलब है चिल्ड्रन को एजुकेशन देना ये चिल्ड्रन का कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, उनका वो हक है, और अगर वो हक उनको नहीं मिल रहा है सो पेरेंट हैज टू गेट पनिशमेंट. ओके, लेकिन ये चिल्ड्रन को एजुकेशन नहीं देने वाले पेरेंट्स के बारे में कौन जाके कंप्लेन करेंगे? दिस इज ऑल्सो अ matter of thinking, right? Now we'll see legal rights for children. Right of Children to Free and Compulsory Education Act 2009.
provides for every child of the age of 6 to 14 years the right to free and compulsory education in a neighborhood school till the completion of elementary education. मतलब ये लीगल राइट है कि अंडर दिस एक्ट एवरी चाइल्ड हैज टू गेट एजुकेशन. Now, Prohibition of Child Marriage Act 2006 was enacted, repealing the Child Marriage Restraint Act 1929. In order to prohibit child marriages rather than only restraining them, it makes child marriages avoidable by giving choice to the children in the marriage to seek annulment. इसका मतलब क्या है, पहले चाइल्ड मैरिजेस होते थे, ओके, सो अभी वो मना किया है, 2006 को वापस से अमेंड किया है. सो चाइल्ड मैरिजेस हैज टू बी प्रोहिबिटेड. सो दिस इज लीगल. कहीं पे भी अगर चाइल्ड मैरिजेस होते हैं, मतलब अंडर 18 साल के नीचे जो भी लड़के या लड़का और लड़कियां हैं, तो उनकी शादी नहीं होनी चाहिए. दिस इज अ लॉ. अगर उनकी शादी होती है तो उनका पनिशमेंट मिलती है. जुवेनाइल जस्टिस केयर एंड प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन एक्ट 2000. दिस एक्ट एम्स एट प्रोवाइडिंग अ जुवेनाइल जस्टिस सिस्टम फॉर जुवेनाइल्स इन कॉन्फ्लिक्ट विथ लॉ एज वेल एज चिल्ड्रन in need of care and protection. It adopts a child-friendly approach in adjudication disposition of matters in the best interest of children and for their ultimate rehabilitation. जुवेनाइल जस्टिस मतलब बच्चों के लिए न्याय व्यवस्था. See, as I said before that, कि children has no responsibility. Yes, children को कोई responsibility नहीं दे सकते, because ऐसे भी माना जाता है कि वो किसी के भी नहीं रहते हैं. Okay, jokes apart, किसी के भी नहीं रहते मतलब क्या, उनका खुद का decision power होता ही नहीं है. So because of they are small, they are kids, इसके लिए तो उनको बच्चे कहते हैं, बराबर है कि नहीं. So juvenile justice में उनके लिए भी न्याय व्यवस्था हर स्टेट में होनी चाहिए, टू केयर एंड टू प्रोटेक्ट देम. अगर कोई भी वहाँ चिल्ड्रन के ऊपर अत्याचार कर रहे हैं, सर्वे अगर स्टडी में ऐसे दिखाई देता है, सो अंडर दिस एक्ट इट कैन बी स्टॉप्ड. ओके, एंड एट द टाइम ऑफ एडॉप्शन ऑफ द चिल्ड्रन, जो बच्चों को अडॉप्ट करते हैं, सो अगर उनका केयर एंड प्रोटेक्शन ठीक से नहीं हो रहा है, सो अंडर दिस एक्ट दोज पेरेंट एंड दोज गार्डियंस कैन गेट अ पनिशमेंट. ओके, नाउ नेक्स्ट, प्री कॉन्सेप्शन प्री नेटाल डायग्नोस्टिक टेक्निक्स प्रोहिबिशन ऑफ सेक्स सिलेक्शन एक्ट 1994 prohibits sex selection before or after conception and prevents the misuse of prenatal diagnostic techniques for sex determination leading to female foeticide. अब ये प्री कॉन्सेप्शन एंड प्री नेटाल डायग्नोस्टिक टेक्निक्स क्या होती है? सी, प्री नेटाल मीन्स भ्रूण. ओके, सो व्हेन अ लेडी बिकम प्रेग्नेंट, तो तभी पहले क्या होता था कि उसका सेक्स डिटर्मिनेशन टेस्ट होते थे. सो देयर इज अ मेडिकल टेस्ट. सो उसमें सोनोग्राफी या फिर कोई और भी टेस्ट हो सकते हैं. सो थ्रू दैट टेस्ट द जेंडर या फिर सेक्स समझ में आता था. मतलब चाइल्ड, अनबॉर्न चाइल्ड जो है, जो अभी भी माँ के वूम्ब में है, गर्भाशय में है, उसका सेक्स क्या है, वेदर इट इज अ बॉय चाइल्ड, वेदर इट विल बी अ गर्ल चाइल्ड, तो ये डायग्नोस्टिक टेक्निक से पता चलता है. सो उसके वजह से क्या होता था, वी नो इन आवर हिस्ट्री, वी नो दैट इन इंडिया फीमेल children are not preferred.
मेल चिल्ड्रन वर प्रेफर्ड। अभी ऐसा नहीं होता है, बट फिर भी कुछ जगहों पे ये गर्ल चाइल्ड को प्रेफर नहीं किया जाता है, बिकॉज वी नो द रीजन, वंश परंपरा या फिर वंशाचा दिवा, हमारे वंश का चिराग, सो लाइक दैट। सो उसी की वजह से ये जो टेक्निक्स होते हैं, सेक्स डिटर्मिनेशन टेक्निक्स, वो होती थी। और उसकी वजह से जो भी लड़कियां, गर्ल चाइल्ड अगर होगा तो उसकी भ्रूण हत्या होती थी, उसको कहते हैं फीमेल फुटीसाइड। सो इसको रोकने के लिए, फीमेल फुटीसाइड को रोकने के लिए 1994 में दिस लीगल राइट हैज टू बी प्रोक्लेम्ड। ओके, सो अकॉर्डिंग टू दिस राइट, लीगल राइट, द सेक्स डिटर्मिनेशन टेस्ट हैज टू बी प्रोहिबिटेड। और जहाँ कोई क्लिनिक में ऐसा अगर सेक्स डिटर्मिनेशन होता है, सो उनको अंडर दिस लीगल एक्ट पनिशमेंट होगा। सो दैट्स व्हाई ऑल द डॉक्टर्स एंड नर्सेस, दे आर नॉट रेडी टू टेल द women and men what the sex of their child, unborn child is. So according to this preconception मतलब before pregnancy, some people also want some techniques, understand the techniques how to get a boy child. So actually this is not done, but ये prenatal diagnostic techniques उसी के लिए होते हैं, and this has to be prohibited. Then infant milk substitutes, feeding bottles and infant foods regulation of production, supply and distribution act 1992. What this act is, it provides for the regulation of production, supply and distribution of infant milk substitutes, feeding bottles and infants foods with a view to the protection and promotion of breastfeeding and ensuring the proper use of infants food. It means that see, when newborn baby रहते हैं, so in hospitals and till the age of 5 उनको feeding bottles देना, उनको infant food दे, infant मतलब newborn baby under 5 age. सो उनको खाना, बच्चों का जो खाना रहता है अच्छा क्वालिटी का, सो गवर्नमेंट प्रोवाइड करते हैं पुअर फैमिलीज के लिए. सो दिस इज मिल्क सब्सटीट्यूट्स. मिल्क सब्सटीट्यूट्स मतलब मिल्क और ऐसे ही कुछ न्यूट्रिशियस सब्सटीट्यूशंस रहेंगे जिनके वजह से बच्चों के लिए न्यूट्रिशन के लिए अच्छा है. दैट हैज टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड एंड दैट हैज टू बी प्रोड्यूस्ड अंडर प्रॉपर डायग्नोस्टिक, अंडर प्रॉपर कंट्रोल. सो ये भी बच्चों का एक राइट है कि उनको अच्छा न्यूट्रिशियस खाना मिलना चाहिए क्योंकि उनके ग्रोथ के लिए है. यू नो, children need more protein than adults, growing children. So you also need more proteins. हमारे खाने में भी proteins होना चाहिए. So this is what the legal right is. Then Child Labor Prohibition and Regulation Act 1986. It prohibits employment of children below 14 years in notified hazardous occupations and processes. It also regulated the working conditions of children in other employments. Further, it obtains uniformly in the definition of child in the related laws. इसका मतलब है चाइल्ड लेबर जो है वो प्रोहिबिट किया गया है एंड किसी भी चाइल्ड को ऐसा काम देना गलत है अंडर दिस एक्ट. Now, Young Persons Harmful Publication Act 1956. It prevents the dissemination of certain publications harmful to young persons. Harmful publication is that which tends to corrupt a young person to commit offenses or acts of violence or cruelty. क्या मतलब है इसका? See, young person, as I told you, the
teenagers or below 18 till 18 years old. Even you people, आप लोग भी young persons में आते हैं, isn't it? So as I told you कि your age is so crucial, आपका एज इतना crucial है कि आपके feelings are different, children के feelings different रहते हैं और वो नई नई बातें सीखना जानते हैं और they don't know, even you also, आपको भी क्यूरियोसिटी होती है नई नई बातें जानने की, सीखने की. ओके सो तभी जैसे बोलते हैं ना यंग एज, जोश, एक जोश भरा हुआ, एनर्जेटिक, फुल ऑफ एनर्जी. ऐसे लाइक उड़ता खिलौना इज लाइक कैन से, इतनी एनर्जी रहती है कि आप लोगों को क्या करे और क्या नहीं करे ऐसा होता है. सो फुल ऑफ एनर्जी, बहुत दम, बहुत ताकत मतलब दिमागी ताकत. ओके सो एट दिस मोमेंट, और कोई भी आप चीज़ें सीखने के लिए, ये अच्छी चीज़ें सीखने के लिए ये एज होता है. सो दैट मोमेंट, अगर आपके सामने इफ सम पर्सन कम्स एंड दे मिसगाइड यू, वो मिसगाइड भी करते हैं, आपका ब्रेन वॉश भी कर सकते हैं और गलत काम के लिए आपको मजबूर भी कर सकते हैं. वैसे ही चिल्ड्रन का होता है. ओके चिल्ड्रन एज आर लाइक यू. ओके सो उनको भी कोई गलत पर्सन के सामने अगर वो आएंगे तो वो मिस गाइडेंस उनको मिल सकता है एंड उनको मिस एजुकेशन मिल सकता है और गलत सलत चीज़ें वो सीख सकते हैं. सो फॉर दिस यंग पर्सन हार्मफुल पब्लिकेशन. सो पब्लिकेशन मतलब बुक्स भी, मीडिया, न्यूज़पेपर्स, या फिर नाउ सी देर आर मोबाइल्स हैं, नेटवर्क है, इंटरनेट है, लैपटॉप्स, एवरीथिंग इज देयर इन द चाइल्ड हैंड्स, राइट. सो अगर उनके हाथ में कोई भी चीज़ ऐसे लगती है जो गलत है एंड वो हावी हो जाते हैं एंड दे कैन फॉलो दैट रॉन्ग पाथ ऑल्सो. सो अंडर दिस एक्ट दिस पब्लिकेशन कैन बी प्रोहिबिटेड. सो ये पब्लिकेशन बच्चों के लिए बहुत ही खतरनाक है, तो वो प्रोहिबिट करना, उसके वो बंद करना, ये जिम्मेदारी ये एक्ट की है. सो जिसके वजह से बच्चों का मोरल डाउन नहीं होना चाहिए, जिसके वजह से बच्चों का मिसगाइडेंस नहीं होगा. सो दिस हार्मफुल पब्लिकेशन की वजह से बच्चे अगर वायलेंट होते हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल सम कार्टून्स. Okay, nowadays there are many cartoons on the TV channels, and because of that, while watching that cartoon, children become so violent. Okay, क्योंकि सी पहले के कार्टून्स बहुत ही स्लो होते थे, उनका शेप, उनका कलर भी बहुत सॉफ्ट होता था. अभी के कार्टून्स में वायलेंस ही है, मतलब सिर्फ मारा मारी करना या फिर कुछ सब मिसाइल्स है, फाइटिंग करना, ये सब है, isn't it? So इसके वजह से children are becoming so violent. उनको वो बहुत ही एग्रेसिव हो रहे हैं. सो ऐसे अगर किसी को दिखाई देता है, सी स्टूडेंट्स, यू विल बिकम इन द फ्यूचर, यू ऑल्सो विल बिकम अ पेरेंट. तो आपको पता होना चाहिए कि चिल्ड्रन के साथ बर्ताव कैसे करना है. एंड यू ऑल्सो, इफ यू आर हैविंग सर्टन if you are going through certain publication which is harmful for you also, so you should stop that. You should not watch such kind of things which can make you violent, which can make you aggressive. Okay, अभी देखो मीडिया में बहुत सारी न्यूज़ ऐसी होती हैं तो जिसके वजह से लोगों का बर्ताव चेंज होता है. बार बार ये निगेटिविटी सामने अगर आएगी, so it will not create a good picture in your mind and you also follow that same negativity throughout your life. So you have to think positively. तो पॉजिटिव देखना मतलब अच्छे न्यूज़ चैनल्स देखना, अच्छे सीरियल्स देखना, अच्छे मूवीज़ देखना, okay, जिसके वजह से दिमाग में अच्छे सोच आए. सो दिस यंग पर्सन्स हार्मफुल पब्लिकेशन एक्ट के अंदर यही कहा है,
अगर ऐसे थ्रू मीडिया या फिर कोई भी सोर्सेस से बच्चों की अगर हानि होती है, उनका बौद्धिक विकास या फिर शारीरिक विकास के ऊपर अगर कुछ चोट पहुंचा रहे हैं, सो दैट शुड बी अवॉइडेड। और अगर अभी देखो बीच में वीडियो गेम्स थे या फिर जिसके वजह से बहुत सारे बच्चों ने सुसाइड कमिट किया। सो ऐसे ऑफेंसेस के लिए ये एक्ट बनाया गया है, जिसके वजह से वो बैन करेंगे एंड बच्चे या फिर यंग पीपल विल नॉट फॉलो दैट रॉन्ग थिंग। चिल्ड्रन प्लेजिंग ऑफ लेबर एक्ट prohibits the parent or guardian from pledging the services of a child in return for any payment or benefit। मतलब pledging मतलब बेगर्स अगर उनको भीख मांगने के लिए मजबूर कर रहे हैं तो वो चिल्ड्रन प्लेजिंग ऑफ लेबर एक्ट के खिलाफ होता है। गार्डियंस एंड वार्ड एक्ट It provides that the court must take into consideration the welfare of the child while appointing a guardian। गार्डियन मतलब अगर उनके पेरेंट नहीं है, ऑर्फनेज, ओके, उनके जो अनाथ है, उनके पेरेंट नहीं है, तो उनको अगर किसी को देना है, गार्डियंस अडॉप्ट कर रहे हैं कोई पेरेंट, तो वो होंगे उनके गार्डियंस। सो अगर गार्डियन उनके वेलफेयर के लिए होने चाहिए। इफ दोज गार्डियन एक्सप्लॉइट देम, so it should be against these guardians and ward act। So according to all these legal rights and constitutional rights, we only can say that children are the person who are vulnerable, they are weak, they are so crucial, susceptible for exploitation, they can become a victim, उनका अब्यूज हो सकता है, ओके, उनका शोषण हो सकता है। तो वो सब रोकने के लिए कॉन्स्टिट्यूशनल एंड लीगल राइट्स है। ओके, सो दिस फॉर टुडे। In the next lecture we will see how these children are violated। उनके साथ शोषण कैसे होता है वो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर के लिए देखेंगे। थैंक यू।